Hello dear viewers, welcome to our channel Study Maths. In this video, we are going to cover the trigonometry and all the solutions of NCERT 11th Mathematics. So we'll begin with the basic concept of trigonometry in this video, and later on we'll continue the syllabus in the upcoming videos. So basically the trigonometry itself is a combination of two words. The trigonometry is a combination of two words. The very first word is trigno and second one is metry. That means the first word itself indicates a triangle and metry itself represent measurement. That means in trigonometry we only deal with all the measurement related with triangles. As we already know that triangle is having three sides 1, 2 and 3, A, B and C, and three angles, angle A, angle B and angle C. So in trigonometry we only need to understand how the sides and how the angles are related with each other and what are the different methods to use. तो trigonometry का सबसे पहला concept होता है हमारे पास angle. The very first thing is angle. Angle हमने previous 9th और 10th class में भी हमने पढ़ रखा हुआ है. So there are two lines, the first line and second line. तो first line को हमने बोला हुआ fixed line. First line is what? Fixed line. ये fix है, इसका place fix है. Let's say this line is line AB. And another line, the second line is AC. एक कोई second line है AC. And this line AC is known as revolving line. Revolving line. That means this second line can move from its position. ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है. तो सपोज सम पोर्शन ऑफ टाइम के बाद में ये जो लाइन AC है ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है और आफ्टर सम पोर्शन ऑफ टाइम अगर वो यहाँ तक मूव किया हुआ, then the path covered by this revolving line from the fixed line, ये जो path है, this path is known as angle. So angle is nothing but the path traversed by the revolving line. अब angle हो गया कि angle भाई revolving line का traversing path है. तो revolving line दो डायरेक्शन में traverse कर सकता है. It can be traverse in this direction or it can be traverse in this direction. इस डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है दैट मीन्स अपोजिट टू द क्लॉक डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन. एंड इफ रिवॉल्विंग लाइन मूव्स in the direction of the clock, that means clockwise direction. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्विंग लाइन मूव कर रहा है तो जो एंगल फॉर्म होगा दोज एंगल्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंगल्स. और अगर ये रिवॉल्विंग लाइन इस फिक्स्ड लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, देन दोज एंगल्स आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंगल्स. तो पॉजिटिव एंगल्स भी होते हैं, नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं. हमने जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में देखा हुआ था देयर आर टू लाइंस दैट डिवाइड द प्लेन सिस्टम इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो लाइंस तो दो ही हैं बट प्लेन को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ. अगर एंगल यहां से हम मेजर करेंगे सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंगल्स, और अगर एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे सो दोज एंगल्स आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंगल्स. तो जैसे बाकी अदर यूनिट्स हैं हमारे पास कि लेंथ मीटर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, फुट्स में भी मेजर होता है, किलोमीटर्स में भी मेजर होता है. दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स, सिस्टम्स. तो सिमिलरली ट्राइंगल के एंगल को भी मेजर करने के हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड सिस्टम्स हैं. तो उन वेल डिफाइंड सिस्टम्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज मेजर्ड इन 3 different units. The very first system to measure the angle of triangle is sexagesimal system. The second system is centesimal system and the third system is circular system. So now we will have a deep look of each system. The very first system is sexagesimal system. तो फर्स्ट जो सिस्टम है दैट इज sexagesimal सिस्टम. तो एंगल को हम सेक्साजेसिमल सिस्टम में भी मेजर करते हैं.
ये पहला मेजरमेंट का हमारे पास सिस्टम है। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ये जो छोटा सा पावर लगा हुआ सर्किल, इसको रीड करते हैं हम डिग्री। ये हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है 9th और 10th सिलेबस में, दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं एंगल को इस सिस्टम में मेजर कर रहा हूं, सो दोज एंगल्स आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ व्हाट, डिग्रीज। एंड फर्दर 1 डिग्री इज इक्वल टू कैन बी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट को मैथमेटिकली 61 डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डैश इटसेल्फ रिप्रेजेंट मिनट, एंड फर्दर 1 minute is equal to 60 second. Double dash itself will represent second. So one right angle is 90 degree, 1 degree is 60 minute, and 1 minute is 60 second. Now the second system to measure the angle is centesimal system. Centesimal system, or this is also known as French system. In centesimal system, your angle is always measured in what? In grade. That means here one right angle is equal to 100 grade. G itself will represent the grade value. So one right angle in centesimal system is always equal to 100 grade, and further 1 grade is equal to 100 minute. 1 grade is equal to 100 minute, and further 1 minute is equal to 100 second. 1 minute is equal to 100 second. 1 minute is equal to 60 second in sexagesimal system, and 1 minute is equal to 100 second in centesimal system. तो किस सिस्टम में हम अपने एंगल का मेजर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है. Now we'll discuss the third system of the angle measurement. So the third system of angle measurement is circular system. Circular system. Yes. So in this system, your angle is always measured in which form? In form of radian. Radian. Here, one right angle is equal to pi by 2 radian. Pi by 2 radian, or we can also write it as pi by 2 raised to the power c. C itself will represent the radian value, but अगर pi value लिखा है then it is already understandable that value हमारे पास circular system का है और वो radian है. So in general we omit this c. हम इस c का use नहीं करते हैं. So one right angle is equal to pi by 2 radian. And similarly further अगर मैं बात करने जाऊँ then 1 radian is equal to, अगर मेरे को बात करना है कि 1 radian is equal to how much degree और how much grades, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज, आगे चल के हम कन्वर्जन फार्मूलाज भी देखेंगे. तो these are the 3 systems in which we can measure our angle. Sexagesimal तो डिग्री, सेंटीसिमल में हम ग्रेड में मेजर करेंगे, सर्कुलर सिस्टम में हम उसको रेडियन में मेजर करेंगे. So now we will see how to convert one angle into another form. So the very first system is degree system, then second system is grade system, third system is radian system. तो हम कन्वर्जन फार्मूला कुछ इस तरीके से जनरेट करेंगे कि वन राइट एंगल एंड वन राइट एंगल. दैट मीन्स राइट एंगल तो सारे फॉर्मेट में सेम ही होगा. तो डिग्री सिस्टम में वन राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. वन राइट एंगल में ग्रेड कितना होता है, सो 100 ग्रेड. एंड वन राइट एंगल में रेडियन कितना होता है, सो पाई अपॉन 2. अब इस अपॉन 2 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, सो दैट विल बी इन न्यूमरेटर. सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. हम किसी भी एंगल को अगर मेरे को सेंटीसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सेक्साजेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सो वी विल ऑलवेज यूज दिस फार्मूला. ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम का पार्ट है, सेक्साजेसिमल सिस्टम. दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटीसिमल सिस्टम एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम. अब यहाँ एक बात और समझने वाली है.
हमने ये फिक्स लाइन डिज़ाइन किया, हमने ये रिवॉल्विंग लाइन डिज़ाइन किया, ये हमारे पास एक पाथ ट्रेवल्स हुआ जिसको हम बोलते हैं आर्क। तो ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो वैल्यू हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रेडियस, एंड दिस इज व्हाट, एंगल। तो हमने पहले से पढ़ रखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा जो कैलकुलेट होता है दैट इज कैलकुलेटेड विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला 2। हम इस फॉर्मूले से भी अपने एंगल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ऑल द एंगल्स दैट आर कैलकुलेटेड विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला आर ऑलवेज इन रेडियन। बिकॉज अगर मैं इसको कंप्लीटली मूव कर दूं रिवॉल्विंग लाइन को, तो ये रिवॉल्विंग लाइन मूव होके कंप्लीट सर्किल फॉर्म करेगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्क्यूलर सिस्टम एंड ऑल द एंगल्स ऑफ द सर्कुलर सिस्टम आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडियन। तो जब भी आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सो दोज एंगल्स दैट रिजल्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडियन। वो हमेशा रेडियन में ही होंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। एंड इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस एल एंड आर दोनों के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। डिवीजन दो वैल्यूज़ का तभी करेंगे जब वैल्यूज़ हमारे पास सेम यूनिट में होंगे। दैट मीन्स कि अगर लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 100 सेंटीमीटर और रेडियस है मेरे पास 5 मीटर, देन वी कैन नॉट फाइंड द एंगल ऑफ दिस, बिकॉज इन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट both the values in the same unit, then we will find out the angle values. So now we will solve some questions from one system to another system. Let's consider question है हमारे पास कि 180 डिग्री जो लिखा है, इस डिग्री को मेरे को रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, हम ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स डिग्री फॉर्मूला क्या है, d/90, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2r/π। ठीक है, नाउ कितना डिग्री मेरे को कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री। दैट मीन्स डिग्री वैल्यू इज व्हाट, 180 डिवाइड विथ 90। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, 2 radian/π, और हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 90 2 ज़ा 180, देन लेटर ऑन 2 गेट्स कैंसिल विथ 2, पाई अकेला बचेगा, उसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू रेडियन। तो रेडियन वैल्यू कितना हो गया, पाई। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो योर रिजल्ट विल बी पाई रेडियन। इन अ सेम वे वी कैन कन्वर्ट एनी डिग्री टू एनी रेडियन, एनी ग्रेड टू एनी रेडियन, और किसी भी तरीके का कन्वर्जन हम इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स कंसीडर कि मेरे को 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। वी नीड टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन फॉर्म। सो फिर मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। फॉर्मूला क्या, डिग्री, और डिग्री की जगह पे वैल्यू है मेरे पास 30 डिग्री डिवाइड विथ 90 इज इक्वल टू रेडियन। तो रेडियन फॉर्मूला इज 2r/π। सॉल्व करेंगे, 30 3 ज़ा 90, और इस 2 को यहाँ लेके आएंगे, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 6, पाई ऊपर आएगा, π/6 इज इक्वल टू रेडियन। दैट मीन्स 30 डिग्री को मैं π/6 लिख सकता हूँ। सो 30 डिग्री इन रेडियन इज π/6। सो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इस फॉर्मूले का ये यूज़ है जिसका यूज़ करके हम एक डिग्री या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। So in this video, we had seen the basic concept of calculation and conversion of the angles, and in the next video, from the next video, we'll continue the syllabus according to the NCERT.